Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, lift up a hallelujah wherever you are. आइए हमारे साथ हालेलुया की ललकार हम आसमान तक पहुंचाने वाले हैं इस सुबह के वक्त। अगर परमेश्वर आपसे वफादार रहा है, अगर परमेश्वर ने अपनी एक विश्वास योग्यता आपके जीवन में दिखाई है, तो आपका फर्ज होता है उसके सामने खड़े होकर उसको धन्यवाद देने का। और ये समय आपको दिया जा रहा है बस वही करने के लिए, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया की ललकार आपकी उस मुश्किल में, आपकी उस परिस्थिति में करने के लिए। आमीन। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के सामने मैं गाऊं हालेलुया, शंका की शोर से परे मैं गाऊं हालेलुया, ये गीत मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, राख के ढेर से आशा उभारे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार। गाइए, राख के ढेर से आशा उभरे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे हर एक कण कण से हालेलुया। अपने हाथों को उठा के मैं गाऊं हालेलुया, अंधेरा सारा दूर हटे, अंधेरा सारा दूर हटे। हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, राशियों के बीच में, राशियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। डर तेरा मुझ पर जोर नहीं, डर तेरा मुझ पर जोर नहीं। Come on and sing it with me. मैं गाऊंगा, ओ मैं गाऊंगा तूफान, तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, राख के ढेर से आशा उभारे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, राख के ढेर से आशा उभारे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। मैं गाऊंगा तूफान के बीच में, ऊंचा और ऊंचा मेरी स्तुति की ललकार, राख के ढेर से ओ आशा उभारे, मृत्यु तू हारे, मेरा राजा जीवित है। I'm gonna stand
Sing a little louder. Come on, somebody in Cabot Temple. Sing a little louder. Ooh, sing a little louder. Yeah, sing a little louder. Yeah, sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder. Death, it has no hold on me. Come on, sing a little louder. Your weapon is a melody. Sing a little louder. Death, you lost your hold on me. I'm gonna stand. I'm gonna stand in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. That's it. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. There is someone out there who is wallowing in a pit of ash. There is nothing left in your life but ashes, my friend. Your dreams have been shattered. Your life has been shattered. You've lost your job, you've lost family, you've lost friends, you've lost just about everything. All that remains is ashes. केवल जो राख होती है आपके जीवन में, आज प्रभु दिखा रहा है कोई एक व्यक्ति ऐसे है, ऐसे सोच रही है कि मेरी जिंदगी में और कुछ बाकी नहीं रहा है, केवल राख अब बच गई है। पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ आज इस दिन पर यीशु वो राख को भी ले सकता है और उसमें से कुछ खूबसूरत फिर से बना सकता है। हालेलुया। I'm gonna stand in the middle of the storm. In the middle, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Hallelujah. Let the enemy hear your shout. Let the enemy hear the sound of your voice. Come on, Cabot Temple. Let the enemy hear it. Hear it today. Shout it out in your homes. Shout it out in your ministry. Shout it out in your church. Shout it out in the Cabot Temple. Shout it out in this nation of India. Shout it out in the atmosphere wherever you are. Oh. Even as we have shouted into the atmosphere, even as we have released words, prophetic words into the atmosphere around us, whether it is in our homes, whether you are on your terraces, whether you are anywhere outside but you are listening to this program, if you have shouted out a word of prophecy, a prophetic word, a prophetic utterance, you have shouted out something that the enemy is afraid to hear. Today I am here to tell you there is a shift in the atmosphere. There is a shift in the atmosphere, my people. आज इस वातावरण में कुछ बदलाव जरूर हो गया है क्योंकि आपने जोर से यीशु की जय ललकारी और पुकार दी है। शैतान वो सुनकर डर जाता ही है। हालेलुया। जब प्रभु के लोग इकट्ठा होकर जोर से ललकारते हैं, शैतान वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। He cannot stand where the people of God release a shout of victory. He cannot stand where the people of God release a shout of joy. For the devil is defeated. He is a liar. Oh, he is a liar. He is a defeated foe. But the victory belongs to the children of God. Jesus said in his word, be of good cheer, children, for you have overcome this world. You have overcome. The world has not overcome you. The economy has not overtaken you. This disease and this pandemic has not overtaken
in you, but you have overcome this world. Change your perspective this morning. आज सुबह के वक्त अब हमारा नजरिया हम बदल दे। संसार ने हमारे ऊपर फतह और जय नहीं पाली है, इस महामारी ने जय हमारे ऊपर नहीं पाली है। ओ आर्थिक जो स्थिति बिगाड़ है उसने हमारे ऊपर जय नहीं पाली है, बल्कि परमेश्वर के कलाम के अनुसार यीशु बोलता है, आनंद करो मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने इस संसार पर विजय पाई है। हालेलुया! इस संसार पर हमने विजय पाई है। ओ सारे अर्थव्यवस्था के ऊपर हमने विजय पाई है, महामारी के ऊपर खुदा के बच्चों ने विजय पाई है। हालेलुया! Because we are not made to live according to the system and the functioning of the world, but according to heaven and the kingdom of heaven that reigns in the midst of us right now. प्रभु आज हमें तू स्पर्श कर, तेरे दास के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमारी आंखों को और मनों को खोल दे, ताकि हम समझ पाए कि हम तेरे में जय और फतह पाने वाले लोग हैं। शदालाबारी अंदर तेरा अनुग्रह और तेरा मस्सा इस जगह में ओ जोर से उतरे आने दे और हर एक जन को छू ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shalom and welcome to our Sunday service. हमारे रविवार की सभा में फिर एक बार और आपका स्वागत हम तहे दिल से करते हैं और सभी को यीशु के नाम से सलाम। I pray and I hope that you are all fine by God's grace. मैं दुआ करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सब यीशु में आज स्वस्थ हैं। You see how quickly Sunday comes? आपने देखा कितने जल्द ही रविवार का दिन आता है। As soon as we blink our eyes and as we finish our service this afternoon, Sunday will be over, Monday will begin, and then we'll find ourselves again on Sunday. रविवार कितने जल्दी से आता है भैया। अभी अभी हमारी सभा आधे एक घंटे में खत्म हो जाएगी, उसके बाद सोमवार का दिन आएगा, पूरा सप्ताह चला जाएगा, फिर रविवार का दिन आएगा। So that is why the Bible said that we need to redeem the time. इसलिए कलाम में लिखा गया है कि वक्त का आप सदुपयोग करना। You know, there are many people out there who think that first I will get a job and I will set my career. अब बाहर तो बहुत लोग हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो सोचते हैं देखो भैया समय है ना, इसलिए मैं नौकरी करूंगा पहले। I still got time, I'm young. मैं अभी भी जवान ही हूँ, समय है मेरे पास। I'll get married and I'll plan. नौकरी करूंगा, पैसा कमा लूंगा और फिर मैं शादी करूंगा। That in how many years time will I have a baby and found a family. और फिर उसके बाद में मैं ये भी आयोजन करूंगा कि मैं बच्चे कब पैदा करूंगा और फिर उसके बाद हमारा जो परिवार है खड़ा हो जाएगा। So people have many plans. देखिए लोगों की बहुत सारे योजनाएं होती हैं। Yes, many plans. जी हाँ, बहुत सारे योजनाएं। But if you do not have godly wisdom, you do not have how to plan your life, you could end up messing up things. It could just become a big mess. लेकिन सुन लीजिए जवानों, खास तौर से अगर आपने प्रभु के कलाम के अनुसार अपने जीवन का आयोजन भविष्य के लिए नहीं किया, तो आगे जाकर वही जीवन जो आपने अपनी बुद्धि से आयोजित किया था पूरा बिगड़ सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। So we sang this morning that our King is alive. अभी अभी हमने वो गीत गाया और उसके लफ्ज ऐसे थे, हमारा राजा जिंदा है। So when we sang that, yes, there was a change in the atmosphere. Amen. जब आपने ये जोर से पुकारा, जरूर से ही जो वातावरण है उसमें बदलाव हुआ है। There was a change. A change happened in us immediately because Amen. we confessed it and we sang That's it. right. The King is alive. Amen. जब आपने विश्वास से ये जोर से ललकारा, वातावरण में जब आपके शब्द निकले, तब ऐसा हुआ कि हमारा राजा जिंदा है, ये शब्द सब तरफ गूंजने लगे और शैतान हार गया। The devil wants you to forget about that. शैतान चाहता है कि आप ये चीज भूल जाए। He doesn't want to remind himself that the King is alive because he knows that the King is coming back again. वो अपने आप को याद नहीं दिलाना चाहता है कि यीशु राजा जिंदा है। क्यों? उसको पता है यीशु फिर से आने वाला है। And when he comes back, he's no longer coming as the Lamb of God, but he's coming
as a king riding on a horse Hallelujah. with a double-sided sword. आमेन। वो जब वापस आने वाला है अभी दूसरी बार, तब वो एक बालक के समान नहीं तो एक न्यायाधीश के समान आने वाला है, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथ में दोधारी तलवार पकड़कर वो आने वाला है। Not on a donkey. एक गधे पर बैठकर नहीं। No, when a king comes on a horse, it means that he's going to war. सुन लीजिए, एक राजा जब भी घोड़े पर बैठकर आता है, उसका मतलब होता है कि वो युद्ध और जंग लड़ने जा रहा है। Amen. So the Hallelujah. devil doesn't want you to, doesn't want you to remind yourself, and he doesn't want you to acknowledge the fact that your king is alive and he is coming and the devil's time is almost up. और शैतान नहीं चाहता कि आप लोग ये जान ले कि आपका राजा जल्दी आ रहा है आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए और उसको पराभूत करने के लिए, उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए। ये शैतान नहीं चाहता कि आप जान ले। Amen. So this morning we are going to I'm going to introduce to you the book of Proverbs. इसलिए आइए आज सुबह के वक्त हम नीति वचन की किताब से पढ़ने जा रहे हैं। And this book will be studied together. We will study this book together on Wednesdays. और नीति वचन की ये जो पुस्तक है, हम रविवार के दिन पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे इसमें से। Now this book is found in the Old Testament. और ये जो पुस्तक है, सुनिए, पुराने नियम में पाई जाती है। So it's one of the 5 poetic books that is found in the Old Testament. और ये एक कविता के रूप में जो 5 ऐसे पुस्तकें हैं पुराने नियम में जो कविता के रूप में लिखी गई हैं, उनमें से ये एक है। So we have the book of Job, we have the book of Psalms, Proverbs, Ecclesiastes and the Song of Solomon. और फिर हमारे पास है अयूब की किताब, फिर भजन संहिता, नीति वचन और जो है जो गीत रत्न है, और एक दूसरा भी किताब है इक्लेसियास्टिस, उपदेशक। Ecclesiastes. Now why is this book found in the Bible? अब ये जो किताब है बाइबल में क्यों पाई जाती है? If you read the book, it's not a very it's not a very spiritual book. सब उपदेशक। और जब आपने ये किताब पढ़ ली ये नीति वचन की, तो ये बड़ा धार्मिक ऐसा नहीं लगता है। But it's a book of, I would say, like common sense. It's about wisdom and knowledge which we can apply to everyday life. लेकिन ये जो किताब है ज़्यादा रूहानी बातें नहीं तो बताती, लेकिन आप अपने जीवन में, रोज के जीवन में कैसे जी सकते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, इसमें इसका जिक्र किया है। So if God found it important for this book to be in the Bible, then we should be That's right. reading it and studying it. सुनिए, यदि परमेश्वर ने देख लिया और ये मान लिया कि ये एक पुस्तक उसके कलाम में आनी चाहिए, उसका मतलब होता है कि इसमें जो लिखा है आपको और मुझे उसको लेकर उसके अनुसार चलना है। So the word Proverbs in the Hebrew means mashal. अब नीति वचन, ये जो शब्द इब्रानी भाषा में मशाल वो अर्थ होता है, मशाल। So it's a word related to a sense of mental superiority. मशाल ये शब्द है, मशाल नहीं माशाल। इसका अर्थ होता है कि एक जो श्रेष्ठता होती है उसकी एक भावना होना। Now the word Proverbs comes from the Latin word proverbium. अब नीति वचन ये एक दूसरे शब्द से भी आती है जिससे हम कहावत या मुहावरे बनाते हैं, उससे। So this is the Latin, Proverbs is the Latin word, but in the Hebrew it's mashal, and when a Jew reads Proverbs, he knows that mashal has a deeper meaning. That's right. सुनिए ध्यान से, प्रोवर्ब्स या नीति वचन ये हो गया लैटिन भाषा में इसका अर्थ, इंग्लिश में, और इब्रानी भाषा में मशाल शब्द इस्तेमाल किया है। जब एक यहूदी व्यक्ति इस मशाल को पढ़ लेता है, तब वो बिल्कुल पहले से ही समझ लेता है इसमें और भी कई गहरी बातें हैं जो उसको सीखनी है। It's not just a book of human wisdom, केवल मानवी बुद्धि और ज्ञान के बारे में नहीं लिखा गया इसमें, but divine rules to govern the whole of a man's conduct. That's right. लेकिन जो मानव
जाति की जो मनुष्य होता है, जो उसकी चाल चलन होती है, उसको सुधारने के लिए इसमें सब कुछ सूचनाएं लिखी गई है। It will govern his spiritual life, Amen. his business life. Yes, his business life. मतलब उसके मनुष्य के आत्मिक जीवन पर और उसके व्यवहारिक जीवन पर भी ये जो बातें हैं ये नियंत्रण लेती है या काबू लेती है, So this करती है। book, it says in chapter 1, the Proverbs of Solomon, the son of God, king of Israel. और पहले वचन में, नीति वचन 1:1 में लिखा है, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। Amen. So we all know the story of Solomon. Solomon was the son of King David, and when he was asked by God, "What can I give you?" he asked for wisdom. सुनिए, आप सुलेमान को तो जानते हैं। जब सुलेमान को परमेश्वर ने पूछा तुझे मुझसे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने उसको वो दी। Amen. You can read that in Kings chapter 3, verse 3 to 13. You can read that at home. और पहला राजा 3 अध्याय में आप घर में ही बैठकर पढ़ सकते हैं, बाद में उसमें ये लिखा हुआ है। So before Jesus came on the earth, King Solomon was known as one of he was the wisest man to ever live. और जब यीशु आने से बहुत साल पहले सुलेमान एक राजा था इस पृथ्वी पर जो सबसे बुद्धिमान माना जाता था। Amen. And we all know the story of one of the most famous stories in the book of Kings about how King Solomon solved the matter of उस राजाओं के किताब में, पुस्तक में आप एक कहानी, बड़ी मशहूर कहानी है, आप जानते होंगे, जब सुलेमान राजा ने उस एक चीज को उसने वहां पर उत्तर दिया, जवाब दिया या उपाय दिया। That famous story about the two ladies and the one baby. और वो दो जो औरतें आई और एक बच्चा जो जिंदा था उनमें का, वो ले आए उसके पास, उसके दरबार में ले आए। I'm not going to tell you the story. You know the story. कहानी तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको तो पता होगी। Now I remember the story because when I was still in the world, I went to Sunday school and we did a play on this what you call it, episode. अब मुझे ये कहानी क्यों ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जब मैं संडे स्कूल जाता था, जब मैं छोटा बच्चा था और तब मैं जाता था, और तब संडे स्कूल में हमने इसके ऊपर एक छोटा सा जो ड्रामा है इस पर हमने किया था, इस किस्से पर। So you see, Sunday school, why is it so important? If I, at the age of, I forgot my age, 45, 44, I can still remember what I learned in Sunday school. अभी जो मैं 44-45 साल का बन गया हूँ, उसके अभी भी मुझे संडे स्कूल में जो मैंने कितने साल पहले सीखा था, अभी जो अगर मुझे वो याद आता है। Imagine these little children who are learning, biblical stories now and biblical songs now. Imagine how this is going to impact their lives in the future. तो समझ लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी इन बातों को सीख रहे हैं, कहानियां सीख रहे हैं, गीत सीख रहे हैं संडे स्कूल के चलते चलते, तब मान लीजिए भविष्य में जाकर इन बच्चों के बुद्धि पर, उनके जीवन पर इसका कितना परिणाम हो सकता है। So why am I introducing Proverbs on a Sunday and not on a Wednesday? Is because on a Wednesday many of you are working and do not logging to our weekly Bible study. अब मैं बुधवार के दिन ये क्यों नहीं सिखा रहा हूँ और रविवार के दिन मैंने ये विषय क्यों चुन लिया, क्योंकि बुधवार के दिन बहुत लोग काम और नौकरी में व्यस्त होते हैं और वो नहीं आ पाते और सुन नहीं पाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए रविवार के दिन। On Wednesday I preached on how my people are destroyed because of the lack of knowledge. लेकिन पिछले बुधवार पे आपने सुना होगा, मैंने इस पर बोला था कैसे परमेश्वर बोलता है मेरे लोग ये नष्ट हो गए हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। Amen. So today we're going to read a bit of what is wisdom, what is knowledge. इसलिए आइए आज हम देखने वाले हैं ज्ञान और विवेक और बुद्धि के बीच में ये फर्क क्या है। So the book of Solomon, the book of Proverbs was written by Solomon. अब नीति वचन का ये किताब किसने लिखा? पुस्तक सुलेमान ने। So but there are also the sayings of the wise. There are the wise men who have written down things which have been
Solomon composed it and put it in this book. और केवल सुलेमान के ही ये शब्द नहीं है, लेकिन और बाकी भी बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने अपने शब्दों को बोला, सुलेमान ने सुना, उसको इकट्ठा कर लिया और इसको भी इसमें शामिल किया. So we have the Proverbs from chapter 1 to 9, the Proverbs of Solomon. और 1 से 9 तक सुलेमान के ये नीति वचन है. Proverbs 10 to from chapter 10 to 26, also Proverbs of Solomon. 1 से 9 तक और फिर 10 से 26 तक भी सुलेमान के ही नीति वचन है. Chapter 22 to 24, we have the sayings of the wise. और 22 मतलब 23 तक और फिर 22 से 22 to 24. 22 से 24 तक वो बुद्धिमान लोगों के वहां पर बयान किया हुआ है. And from chapter 25 to 29, we have the Proverbs of Solomon, who was copied down by King Hezekiah's officials. और 25 से लेकर 29 उन अध्याय में, मतलब नीति वचन के अध्यायों में, वो हिजकिया राजा के सरदारों ने, सुन लीजिए, वो सुलेमान के इन बड़े ज्ञान के शब्दों को लिखे और वहां पर डाल दिए. There's also the chapter 30, the Proverbs of Agur is another wise man. और 30वें अध्याय में अगू, जो एक दूसरा भी बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके शब्द पाए जाते हैं. And then we have the words of King Lemuel. और इसको भूलिए मत, लेमुएल राजा के भी शब्द यहाँ पर लिखे. 31, advice for young men. 31 अध्याय सभी को पता होगा, वो जवानों के लिए वहाँ पर सलाह देता है. So we will be seeing all this in the book of Proverbs on Wednesdays. ये सारी बातें जो नीति वचन में की है वो हम बुधवार के दिन भी देखने वाले हैं. Amen. Hallelujah. So in this book we are going to learn. इसलिए इस किताब में हम क्या सीखने जा रहे हैं? So learning is सीखना एक बात होती है, लेकिन सीखना मतलब क्या होता है? हम केवल जो जानकारी है वो हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, हमारी बुद्धि में डाल देते हैं. So when you learn, you accumulate information, and that becomes knowledge, Yes. which is stored up. Knowledge which is stored up, which can be used on later, can be used later on. सुन लीजिए, जब आप सुनते हो कोई बातों को सुनकर आप केवल ज्ञान ले रहे हो, मतलब आप उसकी जानकारी आपके दिमाग में आप भर रहे हो, और बाद में आगे जाकर ये आपके लिए ज्ञान के रूप में आपकी मदद कर सकता Man, है. so what is wisdom? ज्ञान क्या होता है? अब बुद्धि क्या होती है? Now, wisdom is the actions which it is produced because of knowledge. When you have knowledge, then you can, wisdom is the application of that knowledge, of the actions taken. अब जो अब तक आपने सारे ज्ञान को प्राप्त किया था, उस पर आपने चला, आपने सारे अपनी कृति की, ये सब ठीक ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आप बुद्धि को इस्तेमाल करते हो. You have knowledge of what money is. आपको उसका ज्ञान, But of how to manage पैसा क्या your होता है, finance. पैसा क्या होता है, इसकी विद्या तो आपको मिल गई है, लेकिन उसको कैसे संभालना, कैसे इस्तेमाल करना, खर्चा करना, इसको बोलते हैं बुद्धि. Now, wisdom is the ability to make appropriate and compassionate actions. सुनिए, ये विजडम जो बोला जाता है, इसको या बुद्धि को आप उसके द्वारा सही कृति जो होती है आपकी, उसके द्वारा आप कर देते हैं. Based on the knowledge that you have accumulated. जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया है आज तक, उसके ऊपर, उसके चलते चलते आप बुद्धि को इस्तेमाल करते हो, वही ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए. Now, if you have understood this, understanding means that you now have a complete knowledge of a certain subject, and then you can also, because you have all this complete, knowledge of a subject, you can pass it on. अब सुनिए, कोई एक चीज की नॉलेज या उसका ज्ञान, उसकी विद्या आपको मिली है, उसका मतलब होता है कि आपको जानकारी मिली है, इसलिए आप आगे बढ़कर किसी और को वही जानकारी दे सकते हो. So after something is learned, retained, and used wisely, it can be taught to others. सुनिए, जब आप कोई भी बात सीखते हो, सुनते हो, आपके बुद्धि में, दिमाग में आप डाल देते हो, तो उसके बाद में वही चीज आप दूसरों को भी सिखा सकते हो. So the book of Proverbs, what is it? It is the
fullness of understanding. आमेन। सुनिए, नीति वचन की जो पुस्तक है वो क्या है? हमारे पूरे बुद्धिमत्ता की वो एक पूर्णता है, पूर्णता। So it is a fullness of understanding, and many times हमारी समझ की ये पूर्णता होती है नीति वचन we का as किताब। parents, young parents, we are teachers, whether you like it or not. बहुत से बार ऐसे होता है, हम तो बिल्कुल जवान माँ बाप है छोटे बच्चों के, और हम शिक्षक बन गए हैं। And we pass on this, whatever wisdom that we have, to our children. शिक्षक किसके हम बन गए हैं? खास तौर से हमारे छोटे बच्चों के। और जो हमने सीखा है प्रभु के द्वारा, जानकारी जो हमें मिली है, बस वही हम हमारे बच्चों को देते हैं, बांटते हैं। And we as Christians, we have an advantage because we pass on the word of God. We pass on godly knowledge to our children. और हम मसीह होने के नाते हम भी जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान और बुद्धि हमें मिलती है, वही हम आगे जाकर हमारे बच्चों को देते हैं। Now this book is mostly it's addressed to a young man. We can say a young man or a young woman. अब मैं केवल इसका परिचय दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये जो पुस्तक है वो एक जवान लड़के को या एक युवक को लिखा गया है। Because in our life, from youth to a mature man and woman, we are going to face many situations. सुनिए, क्योंकि हम बिल्कुल बचपन से, जवानी से होकर जब तक हम बुढ़ापा आ जाएगा हमारे ऊपर, तब तक बहुत से इस प्रकार के हम हालातों में से गुजरेंगे। And then we need godly wisdom to instruct us and to guide us. That's right. In making decisions, That's right. which can lift us up or we can fall down. इन सारी हालातों में से जब हम चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तब हमें ईश्वरीय बुद्धि या प्रज्ञता की चीज होती है, उसकी हमें ज़रूरत होती है, ताकि उसको इस्तेमाल करके हम और आगे बढ़ते जाए और हम बुद्धि से और आगे बढ़े। Now, when you read the book of Proverbs, there are a few people which are mentioned. For example, we have the wise, the fool, and the simple. अब आगे जाकर अगर आपने नीति वचन की इस पुस्तक को पढ़ा और भी पढ़ा, तो आगे जाकर आप 3 प्रकार के लोगों को पाओगे। कौन है? एक होता है बुद्धिमान, दूसरा होता है मूर्ख, और तीसरा होता है भोला। Simple is, simple. जो बिल्कुल भोला व्यक्ति होता है, Naive, someone who's naive. भोला होता है। So these are the people who are addressed mainly in this book. और इस प्रकार के 3 प्रकार के लोग यहाँ पर लिखे गए हैं। So the first 9 chapters, like I mentioned earlier on, is Proverbs, which are of wisdom. So they are wisdom poems. निर्बुद्ध व्यक्ति के बारे में। अब आगे जाकर जब आप देखोगे तो ये जो पोएम्स या कविता होते हैं, इसके द्वारा लिखे गए हैं, इसके रूप में लिखे गए हैं। Now I'm just going to go to Proverbs 30 verse 5 rapidly, just to read this verse out. It says, Proverbs 35, it says, every word of God is flawless. He is a shield to those who refuge in him. Proverbs 35, we can just read that. और नीति वचन उसका 30वां अध्याय और 5वीं आयत। Every word of God is flawless. परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है। And here it says in this version, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। For those who seek a refuge in him, he is a shield. Amen. जो उसमें आकर शरण लेते हैं, वो उनके लिए ढाल ठहराया जाता है। So the word of God is flawless. It is pure. Amen. इसी कारण परमेश्वर का एक वचन शुद्ध है। Like I said, पाक है। my people are destroyed, the Bible says, because of lack of knowledge. बाइबल में लिखा गया है, भाइयों बहनों में परमेश्वर बोलता है, मेरे लोगों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान की कमी है। So let us begin. आइए हम शुरुआत करेंगे। Proverbs, we already read chapter 1 verse 1, the Proverbs of Solomon, the king of David, a king of Israel. और पहले वचन से हमने पहली आयत को पढ़ भी लिया था, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। Verse 2 says, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. दूसरी आयत, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। So the purpose of this
book, अब ये जो उद्देश्य इस पुस्तक का एक ही है, it is to educate. लोगों को शिक्षा देने के लिए, Yes, we need to be educated. शिक्षण देने के लिए या शिक्षा उन्हें प्राप्त करने के लिए. So it is a book, it can be called, it's a handbook for the young mainly. खास तौर से जवानों के लिए, युवकों के लिए ये पुस्तक लिखा गया है. Mainly, but not only for the young, it's also for the those who are old as well. केवल जवानों के लिए नहीं है भैया, लेकिन जो बुजुर्ग उनके लिए भी ये लागू हो सकता है. So it's going to teach us about wisdom and instruction. और हमको ये इसके द्वारा शिक्षा और सूचना हमें मिलने वाली है. So to know निर्देशन. wisdom, it's helpful to remember. We need to know the difference between wisdom and knowledge, so we can understand what wisdom is. That's right. बुद्धि और ज्ञान, सुनिए गौर से सुनिए, बुद्धि और ज्ञान में फर्क जानना जरूरी होता You know, है there are- ताकि फिर हम बुद्धि को इस्तेमाल कर There are पाएंगे. many people who have knowledge but not wisdom. बहुत लोगों को ज्ञान तो है बातों की, विद्या उन बातों की मिल गई है, पर बुद्धि उसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ही नहीं है. So to have knowledge without wisdom is like is having a collection of facts. इसीलिए बुद्धि के बिना ज्ञान होना वो ऐसा होता है कि बिना कुछ सबूत हुए हमारे पास बस जानकारी है. So you have a collection of facts, that is knowledge. बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी चीजों की जानकारी हमने ले ली है, Now wisdom is घटनाओं की. needed, and wisdom is what you need to what you do, to know how to use it in the right what you call it, Direction. right use, the right use of that knowledge. सुनिए, बुद्धि क्या होती है? आप सारी इन घटनाओं के बारे में जान लेते हो, इसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में सब जानकारी तो आपको है, लेकिन आपको बुद्धि चाहिए होती उसी ज्ञान को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए या उपयोग करने के लिए. Many people have knowledge about finance. उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोगों को जानकारी बड़ी अच्छी होती है पैसों की. People know that we have something called a stock market and there's finance, but not everybody has wisdom of how to manage or how to deal Stock- with these financial stocks and all these things that Yes. can make you rich. सुनिए, अब लोगों को पैसों की जानकारी, संसार के लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ, उनको शेयर मार्केट के बारे में और शेयर बाजार के बारे में बहुत सी जानकारी है. किधर पैसा डालना है, किधर क्या करना है, कहाँ से खर्चा करना है, लेना है, ये सब मालूम है, लेकिन बुद्धि लगती है उसको किधर इन्वेस्ट करने के लिए या किधर खर्चा करने के लिए, कहाँ से उसको खरीदने के लिए. So wisdom is essential and it works together with knowledge. इसी कारण जो बुद्धि होती है बड़ी ही जरूरी होती है और बुद्धि ज्ञान के साथ साथ चलने वाली होती That है. is why हालेलुया. many times you've heard me pray that, Lord, we need your wisdom and your knowledge. इसीलिए बहुत से बार आपने सुना होगा हम प्रार्थना करते करते बोलते हैं, परमेश्वर तेरी ज्ञान तो दे लेकिन उसके साथ बुद्धि भी दे. Because you want your children also to gain that same knowledge Hallelujah. and wisdom, so they can put Amen. that wisdom into the right use. आमीन. आप ये भी चाहते हो, आपको ये चाहत होनी चाहिए कि ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से जो मिलती है मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों को भी मिले, ताकि आगे बढ़कर जब वो बड़े हो जाएंगे वो बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता पाएंगे. You can have a lot of knowledge about chemistry. आपको केमिस्ट्री के बारे में बड़ा ज्ञान होगा. So you have all that knowledge about all these about alcohol and alkaline and all those those chemical terms that they use. और जो केमिस्ट्री में हर एक जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगी. So you can put your knowledge. रसायन शास्त्र के बारे में. So you can put your knowledge to good use. Either you can you can put your knowledge to create something good out of chemistry, or you can use your wisdom to do something bad. That is, you can create a bomb. That's right. रासायनिक जो वस्तुएं होती है, सुनिए मेरी बात को गौर से, क्योंकि आप रसायन शास्त्र बड़े अच्छे से उसमें आप निपुण हैं. आप रासायनिक वस्तुओं को ठीक ढंग से इस्तेमाल करके लोगों के अच्छे के लिए भी कर सकते हैं या उनके बुरे के लिए, बुराई के लिए भी कर सकते हैं. कैसे? बम बनाकर. Like that's why it says next year to know wisdom and instruction. Instruction means discipline or training.
वहां पर लिखा है कि इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और क्या पाएगा? शिक्षा प्राप्त करेगा, Now the- मतलब सूचना निर्देशन प्राप्त The करेगा। Greek word musar means moral discipline. Moral discipline, that is what the word instruction means in this verse. और शिक्षा जो हिंदी भाषा में लिखा गया है वो होता है सूचना, और इब्रानी भाषा में उसका मतलब होता है, It's a moral discipline. उसका मतलब होता है कि नैतिक शिक्षा, शिक्षण। So you have the insight or the ability to see between issues. और इसका मतलब होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे हालातों में या चीज़ों में फ़र्क जानने की और परखने की आपको क्षमता है। To perceive the words of understanding means that you can distinguish between the right and the wrong. और समझ की बातें आपको समझ लेती है, मतलब आपके अंदर समझ है कौन सी चीज़ों के बारे में, गलत और सही क्या है, इसमें आप फ़र्क जान सकते हो। Amen? हालेलुया। So समझ की बातें। verse 3 says to receive the instruction of wisdom, तीसरी आयत हमारे साथ पढ़ लीजिए। काम करने में प्रवीणता justice, judgment and equity. और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। So to receive the instruction, like we said here, a moral discipline, that means that these are the qualities of life that must be acquired for leading a wise life. आपको अगर बुद्धिमानी से एक प्रज्ञता का जीवन, सुनिए, आगे जाकर अगर जीना है, आपकी जिंदगी बदलकर अगर आपको प्रज्ञता से जीनी है, तो आपको इन सारी सूचनाएं या निर्देशन को आपके जीवन में लागू करना है और इस्तेमाल करना है, समझ की बातें, शिक्षा प्राप्त करके और बुद्धि प्राप्त करके। The instruction of wisdom, justice. और न्याय की बातें, धर्म और न्याय। So this wisdom here in verse 3 means thoughtfulness. और ये जो बुद्धि के बारे में तीसरी आयत में लिखा है, उसका अर्थ होता है इब्रानी भाषा में सोच समझकर। And justice means righteousness. धर्म मतलब धार्मिकता। And judgment means the teaching of the Proverbs to lead us to pass a right sentence upon human actions. This judgment does not mean that you are given the right to judge. सुनिए, ये न्याय जो तीसरी आयत में लिखा है, भाइयों बहनों, ये न्याय जो लिखा है, आपको इससे हक नहीं मिलता है किसी का न्याय करने का, इसका अलग अर्थ है। So you can judge somebody's action whether it's good or bad. किसी के जो कृति है उसका आप न्याय कर सकते हो, अगर वो सही है या गलत है। But you cannot condemn them, but you can judge and discern whether the person is right or wrong. So you know whether you can, either spend time with that person or you should stay away from that person. सुनिए, किसी व्यक्ति को देखकर, उनके जो कृतियां हैं उनको देखकर वो सही है या गलत है, उसमें फर्क आप जान सकते हो। उसका न्याय, कृतियों का न्याय आप कर सकते हो, उस व्यक्ति का बिल्कुल नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति को दोषी ठहराना आपकी हक की बात नहीं बनती है। सुन लीजिए, आपको उसके कामों को परखने के बाद उससे साथ नाता जोड़ना या उससे दूर रहना आपका निर्णय है। So equity is also sums up all these qualities that you need. और निष्पक्षता मतलब कोई एक पक्ष का आप नहीं रहना, ये जो है इस निष्पक्षता में ये सारी बातें आ जाती So है। these are the qualities to lead a wise life. आमीन। ये बातें, ये 3-4 बातें जो अभी अभी हमने पढ़ी, वो आगे जाकर बुद्धि का जीवन या प्रज्ञता का जीवन जीने के लिए आपकी सहायता करेगा। It says in verse 4 to give prudence to the simple, to the young man, knowledge and discretion. चौथी आयत मेरे साथ पढ़ लीजिए कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। Now it says here to give prudence to the simple. जो भोला होता है उसको चतुर बनाने के लिए। Who are the simple? The simple, I just said earlier on, is the people who are naive or people who are untaught. भोले कौन होते हैं? मैंने आपको पहले बताया, वो लोग होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली है, वो बिल्कुल चीज़ों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती है। So their mind is dangerously open because it can either receive what is good or what is bad. ये निर्बुद्ध जैसे होते हैं लोग, क्योंकि उनको दोनों भी चीज़ें बताओ, अच्छा और बुरा भी बताओ, दोनों को भी वो ले सकते हैं।
So they are open-minded people. ये लोग जो भोले या निर्बुद्ध होते हैं उनका मन ऐसे खुला रहता है You see that the कुछ people, भी लेने के लिए. the people of the world, those in the religion say, we are open-minded. We accept all. We accept all religions. We accept Jesus as well as the others. और फिर ये लोग जो बाहर के धर्म के हैं वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल भोले जैसे हमको बता देते, देखो भैया हम तो सारे धर्म को ले लेते हैं, सर्व धर्म समाभव है, हम सबका स्वीकार कर लेते हैं. So we are not open-minded, but we are conservatives. हम बिल्कुल ऐसे नहीं है, हमारा मन खुला नहीं है सारे धर्मों के लिए, हम बिल्कुल हमारे प्रभु को ही पकड़ कर चलते हैं. Man, we are conservatives. हम हमारे ही धर्म नहीं लेकिन हमारे ही परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं. And we are faithful to what we believe in. Amen. और जो हम जिस पर हम विश्वास रखते हैं उस पर ही हम विश्वास रखते जाएंगे. That is why we're not going to bring the things of the world into and mingle it up and mix it up into godly things. No. इसलिए हम संसार के लोगों के समान नहीं है, सारी चीजों को लेकर सबका मसाला लेकर और फिर उसका बिल्कुल हम बिरयानी बना देते. Yes. वैसे नहीं, हम हमारे विश्वास को पकड़कर बिल्कुल दृढ़ता से पकड़कर उसके पीछे ही चलेंगे. We don't make garam masala of God things. और परमेश्वर की बातों का हम गरम मसाला पीस कर नहीं बनाते. नहीं. So it says in Proverbs 1:22, we'll read that earlier on. How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए. Which was? Chapter 1:22. 1:22. माफ कीजिए. हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? So you should मूर्खों, not love simplicity. हे मूर्खों, कब तक ज्ञान से तुम बैर रखोगे? इसका मतलब क्या होता है? जो भोलापन होता है, भोंदूपन होता है, उस पर आप प्यार नहीं करना. Now it says the young. Who are the young? अब जवान या युवक कौन है? How many of you who are young are listening to us right now? कौन अपने आप को युवक या जवान समझता है? कितने जवान लोग हमें अब आज सुन रहे हैं? You need both knowledge and discipline. सुनिए, अगर अपने आप को आप जवान समझते हो तो आपको दोनों बुद्धि और शिक्षा भी जरूरी है, अनुशासन. That is important. इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण Remember है. when we read a few weeks ago the ways of Cain? सुनिए, शायद 3 सप्ताह पहले हमने काइन के मार्ग के बारे में सुना था. The ways of Cain. Cain murdered somebody. काइन ने क्या किया? उसका भाई था, उसके भाई की उसने हत्या कर दी शुरुआत Now, में. we don't want the youth to turn in to evil. सुनिए, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हमारे जवान इस प्रकार से बुराई में मुड़कर बुराई के चाल में चलते रहे. That is why we instruct the young. इसी कारण हम हमारे जवानों को बार-बार याद We दिलाते, give them निर्देशन देते रहते हैं moral discipline. और नैतिक चीजों के बारे में हम उनको Amen. बताते रहते हैं. It is important to instruct the क्योंकि young. ये बड़ा जरूरी है भाइयों बहनों, इन दिनों में जवानों को सीधे राह पर लाने के लिए. Now to acquire, it says to the young man knowledge and discretion. और वो जवानों को क्या बोलता है कि तुम इस प्रकार के बुद्धि को और ज्ञान को, विवेक को प्राप्त करना. Now remember in the Garden of Eden, अब याद कीजिए, एदेन के उस वाटिका में which animal was the most cunning and crafty? उस वाटिका में सबसे धूर्त और चालाक जानवर कौन सा था? The serpent. वो था सांप. Of all the wild animals that God made, the serpent was the most cunning and crafty. सबसे जंगली जानवरों में से सबसे धूर्त और चालाक जानवर सांप था. He was so crafty that he knew how to go to the woman and speak to her. Did God say that you must not eat from that tree? वो तो बड़ा चतुर था. बिल्कुल चतुराई से वो उस स्त्री के पास गया और धीरे धीरे आवाज में बोला, क्या खुदा ने तुझे बोला है उस पेड़ का मत खा? So this word is called mizima in the Hebrew. It means wicked and crafty planning. This is what we want to prevent you from attaining. It's crafty and wicked
knowledge. ये ज्ञान जो होता है जिसमें चतुराई होती है, जिसमें चतुराई और बिल्कुल दुष्टता होती है, इससे आपको हम दूर रखना चाहते हैं, हमारे जवानों को दूर रखना चाहते हैं। चतुराई से आप बिल्कुल चतुर मत होना। So when even Jesus, when he sent out his disciple, he said, I am sending you like lamb among wolves. यीशु ने जब अपने चेलों को बाहर भेजा, वो क्या बोला? मैं आपको भेड़ों के समान उन भेड़ियों के बीच में भेज रहा So हूँ। he says you need to be as shrewd as snakes and harmless as doves. और वहां पर यीशु ये भी उन चेलों को बोला, देखिए जब आप भेड़ियों के बीच में जाओगे तो आप उन फाख्ता के समान बिल्कुल किसी को दुख मत, चोट मत पहुंचाना, लेकिन आप सांप के जैसे चतुर बिल्कुल रहना। So discretion is the discernment which sets a man on his guard and keeps him from being duped by false advisors or people who give false advice. That's right. चतुराई हमें इसमें दिखानी चाहिए, गलत बातों में नहीं लेकिन सही बातों में। कैसे? हम लोगों को परखने में हमें निपुण होना है और देखना है कि इस व्यक्ति के द्वारा मैं फंस जाऊंगा या इस व्यक्ति से मैं बढ़ जाऊंगा, ये मुझे फंसा रहा है, क्या कर रहा है, ये परखने में आपको जानकारी होना और बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। So it says in verse 5, a wise man will hear and increase learning. 5वीं आयत में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएगा, And a man of understanding will attain wise counsel. और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएगा। Now, this is for the young man. If you want to attain wise counsel, अब जवानों के लिए, युवकों के लिए ये है, अगर आपको अच्छी सलाह चाहिए। wise counsel means that God gives you the power to steer. Steer means to direct. बुद्धिमान जो सलाह होती है आपको अगर वैसी चाहिए, उसका अर्थ होता है जैसे परमेश्वर आपके हाथ में वो चक्की देता है और आप उसको ठीक तरीके से ढंग से घुमाते हो और आपकी गाड़ी को आप दिशा देते हो। Steering comes from the word steer. और स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी की होती है वो स्टीयर उस शब्द से आती है, मतलब दिशा देना। So this steermanship, अब ये जो हम दिशा देते हैं अपने जीवन को, in the book of Proverbs, it's unique to the book of Proverbs. नीति वचन के किताब में ही आप ज्यादा ये पाओगे। Right? If a man has good steermanship, अगर किसी व्यक्ति को ये दिशा या निर्देशन अपने ही जीवन को देना आता है, he can govern his house wisely. तो ये मनुष्य अपने घराने पर या अपने परिवार पर वो नियंत्रण बड़े अच्छे से कर But सकता if a है। leader or a politician has good steermanship, he can govern a country wisely. That's right. सुनिए, इसी प्रकार से अगर कोई राजनीति में है, कोई मंत्री है, प्रधान है, और उसको भी उसमें भी ये गुण है कि वो निर्देशन सही ढंग से देता अपने आप को, तो वो अपने देश को भी दे सकता है और वो देश को सफलता की ओर चला सकता So it है। says in Proverbs 11:14, नीति वचन 11:14 में लिखा for गया lack है, of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव Amen. होता है। Or the हालेलुया। plans, Proverbs 12:5, the plans of the godly are just, the advice of the wicked is treacherous. यस 12:5 नीति वचन, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की ही होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। And Proverbs 24:6. और फिर 24:6 नीति वचन, So don't go to war without wise guidance. और इसीलिए तू युद्ध में बिना बुद्धि को इस्तेमाल किए हुए मत जाना। Victory depends on having many advisors. 24 6. 6 में लिखा है, इसलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। Amen. So हालेलुया। that is why India will not hastily go to war with any nation, either Pakistan or China. इसलिए भारत देश में कोई दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तुरंत ही नहीं उठेगा, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। Because the prime minister must have, he has, I'm sure, many good advisors that give him good advice. क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनके अच्छे अच्छे ऐसे मंत्री होने चाहिए जो ठीक ढंग की सलाह या सम्मति उन्हें देते हैं और फिर उसके बाद
वो युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं. Amen. That is why Hallelujah. many kings, they had advisors and they used the advice of also the prophets who God spoke to them directly. इसलिए प्राचीन काल में बहुत राजे होते थे और उनके मंत्री होते थे, सलाहदार होते थे. उनकी सलाह लेने के बाद वो आगे की योजनाएं करते थे. Now it says in verse 6, to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. 6वीं आयत, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे. Now if you want to understand the deeper meaning of proverbs, this book will help you. सुनिए, अगर आपको और भी गहराई में जाकर नीति वचन का अर्थ समझना है तो ये किताब आपको जरूर मदद करेगा. For example, when we speak of enigma, remember in the book of, in the story of Samson, आपको शिमशोन की दृष्टांत के बारे में हम बातें कर रहे हैं. शिमशोन की कहानी याद आती है क्या? I remember that now because we went to see the play once. So और Samson, मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि हमने उसका जो प्ले था वो देखने हम गए थे. remember Samson when he was in his wedding feast, he asked them a riddle. आपको He posed them a riddle. याद आ रहा है क्या? जब शिमशोन उस शादी में गया था तब उन सारे लोगों को उसने एक रहस्य या एक पहेली उसने पूछी. The Philistines, and then he said, if you do not, if you cannot explain the riddle, एक पहेली उसने उनको पूछी या एक गुड बात उसने बताई और बोला अगर इसका जवाब आप दे नहीं सकोगे they would have to give him a lot of expensive clothes, I think, a lot of clothing तो and stuff, शिमशोन ने gifts. उन पलिश्तियों को बोला, देखो अगर आपको इसका जवाब नहीं आया तो बहुत मुझे महंगे महंगे कपड़े और बहुत महंगे महंगे ऐसे भेंट वस्तुएं मुझे देना. So the Philistines could not, they could not solve that riddle. अब ये जो पहेली थी पलिश्तियों को बिल्कुल उसका उत्तर नहीं So they मिला used his wife at the time to extract the answer from him. और अपने खाल को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, शिमशोन के पत्नी के पास वो चले गए और बोले अरे उससे जवाब तू निकाल ले और हमें बता दे. So this book will help you. It says, to understand proverbs and enigmas, and the wisdom of the book of Proverbs can help us to solve difficult problems. सुनिए, ये नीति वचन की किताब है भाइयों बहनों, जो आपको बड़े कठिन मुश्किलों का जवाब दे सकता है. कठिन परिस्थितियों में से आपको निकाल कर बाहर ला सकता है. हालेलुया. How to instruct your child. और ये सवाल कौन से होते हैं जो बिल्कुल इस पहेलियों के समान होते हैं. आपके बच्चों को कैसे निर्देशन How to देना, conduct yourself in business. कैसे शिक्षण देना, कैसे व्यवहार करना. The Bible speaks of sometimes in the Proverbs, I don't know where it is, I will find it later on, about men who use scales where you measure weight. नीति वचन में ये भी लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मनुष्य है जो तराजू को वो इस्तेमाल करते हैं. This used to happen in the olden days before electronic scales. पुराने दिनों में ये ऐसे होता था, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन उन दिनों में ये तराजू हाथ में पकड़कर वो वजन देते थे. Yes, the scales they would fidget with the scale, and then instead of giving you 1 kilo, you would always end up getting maybe 900 grams, and they would always rob you of 100 grams. Yes. पुराने दिनों में ये लोग ऐसे ही करते थे. आपको पता होगा जो सब्जी बेचने वाले लोग भी करते थे. उनके हाथों में तराजू होता था, नीचे वो कुछ लौचिम्बक डालते थे ताकि आपको 1 किलो से थोड़ा कम मिले और उनको जो है उनको प्रॉफिट मिले. So it's here in the book of Proverbs. We'll reach it sometime. और यहाँ ही आप नीति वचन में वो पाओगे और आगे वाले श्रृंखलाओं में हम उस वचन को देख लेंगे. So if you're a businessman, never yes. do this. सुन लीजिए, यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, आप व्यवहारिक व्यक्ति हो, तो ऐसी बातें आप बिल्कुल नहीं करना. So now if you need to interpret a riddle, for example, even interpretation of visions and dreams like the prophets had, that Daniel had. Yes. All this comes from godly wisdom and knowledge. सुनिए, यदि आपको इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों या पहेलियों का अर्थ देना पड़ेगा,
दानियल के समान, जिसको इन सारे छिपी हुई बातों के बारे में उसको पहले ही पता होता था। कैसे होगा? जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, सब आपको बता देगा और आप उसमें भी सफल हो जाओगे। Even we too, हालेलुया। when we read the parables of Jesus Christ, now we understand it because we Amen. have received wisdom and knowledge which comes from the Amen. Spirit of God that dwells inside of आमेन। us. यीशु ने भी जो कहानी के समान, दाखला के समान सिखाए, हमें चीजें सिखाई, तो उन कहानियों का अर्थ हमें क्यों अब समझ में आता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी। Amen. So now, Hallelujah. one of the most famous verses in the Bible that many people quote is verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 7वीं आयत सबसे मशहूर, सब मसीह लोगों को पहचान की है ये, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मुड़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। Amen. So, this appears 7 times in the book of Proverbs. नीति वचन की किताब में यही आयत 7 बार लिखी गई है, 7 बार। Now it says, the fear of the दोहराइए। Lord, the fear of the Lord. I'm not speaking about that fear that the children of Israel had. अब यहोवा का भय, सुनिए, ये भय वो भय नहीं है जो इस्राएलियों में होता था। When God descended on the Mount Sinai, जब सिनाई पर्वत पर सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरे आता था। Yes. So when God descended and there was thunder, lightning, and the people trembled, they were shaking. और जब सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरे आता था, वहां पर लिखा है लोग वो आवाजों को सुनकर कांपते थे, डर जाते थे। No, that is not fear of the Lord. इसको परमेश्वर का भय नहीं बोलते हैं। When you shake and tremble, no. जब आप बिल्कुल कांपते और डर 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 जाते हैं, वो डर नहीं है। No, the नहीं, fear of the नहीं, Lord is something more नहीं, नहीं, deeper. ये परमेश्वर का भय जो होता है और भी गहरा होता है। It is when you have fear of the Lord, अब सुनिए, ये जो बिल्कुल आदरणीय भय होता है परमेश्वर का, you have proper reverence of who God is. तब परमेश्वर कौन है वो जानने के बाद एक आदर युक्त भय होता Amen. है। If you look at the earth, and if you look at earth from space, and if you look at the galaxies and the thousands of planets out there, you would know who God really is. That's right. And अगर understand. आप ऊपर अंतरिक्ष में समझो आप जाएं और वहां से अगर आप देखने लगे कि पृथ्वी इतनी छोटी दिखती है और सारे दूसरे ग्रह हैं और बड़े बड़े सृष्टियां जो परमेश्वर ने बनाई है, वो सब उसकी वास्तविकता देखने के बाद फिर आप समझ पाओगे कि आपका और मेरा परमेश्वर सचमुच में कितना महान है। And it will even remind you before you even speak to God arrogantly or rudely. और आप परमेश्वर से बड़े गुस्से में आकर उसे उल्टा उल्टा बोलने से पहले ये बात आपके मन में पहली आ जाए That you are the creature कि आप कौन है? आप केवल एक निर्मिती है, and He is the creator. पर वो निर्माण करता सृजनहार है। And you also are the one who has been redeemed, and you owe your life to the That's Redeemer. right. आप मुक्ति पाए लोग हो और आपका जीवन, आपका प्राण जो है उसने बचा लिया है, इसलिए आप उसके कर्जे में हो। So the fear of the Lord is to, it's the beginning of knowledge. The beginning of knowledge means to have the essence of who God really is. यहोवा का आदरणीय भय होना मतलब बुद्धि का मूल है। मूल मतलब क्या? कि परमेश्वर वाकई में कौन है इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। So to fear God भय धरना, भय मानना परमेश्वर का is to recognize the character and to respond by revering and trusting, worshiping and Amen. obeying Him. आमेन। परमेश्वर और यहोवा का भय मानना, उसका मतलब होता है कि हम उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसकी सारी बातों को हम जान लेते हैं और उसके मारे हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसके सामने झुकते हैं। बिल्कुल हम अपने आप को धूल के समान मानते हैं और उसको हम प्राधान्य देते हैं। So the fools despise wisdom जो मूर्ख होता है क्या करता है? वो इसी बुद्धि को तुच्छ मानता है and instruction. और शिक्षा को भी। But we as children of God, लेकिन आप और मैं प्रभु के बच्चे होने के नाते we know the essence of true knowledge which
causes us to fear him, for we know Amen. who he really is. सच्चे ज्ञान की हम जो सच्ची बुद्धि होती है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है और इसीलिए हम वो जो है परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, ये पहचान पाते हैं, ये जान सकते हैं. Amen. So this is the introduction to the book of Proverbs, and we've done verse 1 to verse 7. और नीति वचन के पहले अध्याय के पहले आयत से और 7वीं आयत तक केवल परिचय नीति वचन के पुस्तक का मैंने दिया. Now verse 8 says, इसकी रूपरेखा है और 8वीं आयत देखेंगे. My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother, for they will be graceful. They will be a graceful ornament on your head, and chains about your neck. मेरे साथ पढ़ लीजिए 8 और 9. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी. Amen. हालेलुया. Now, if you want to study this verse 8, 9, 10, 11 onwards, 8, 9, 10 से आगे अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, make sure you join us on Wednesdays. तो बुधवार के दिन जरूर आ जाइए. Amen. बुधवार के दिन शाम के वक्त For जरूर इस we पेज will पर आना, study this together. क्योंकि हम इकट्ठा होकर इसको पढ़ने वाले हैं. Now, I'm not going to force anyone to join us if you're not working, and you can join us. अगर आप काम और नौकरी नहीं कर रहे हो और आप तब भी नहीं ज्वाइन होते हो There is a तो मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता. there is a verse in the book of Proverbs for such people. नीति वचन में ऐसे लोगों के लिए भी वचन है. So I will not use it now. और मैं उसको आज नहीं इस्तेमाल करूंगा. Yes, I know some people can, but y'all chose not to. क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग आ सकते हैं, सभा में शामिल हो सकते हैं, पर वो नहीं होने का चुनाव करते हैं. So why am I going to study this book together with you? पर मैं क्यों चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये पुस्तक आपके साथ मैं बांटूं, आपके साथ मैं सीखूं. You see, in the world right now, the sayings of Jesus and the sayings of the things written by the prophets and even by Jesus. सुनिए, आज संसार में, दुनिया में ऐसे हो रहा है कि जो भविष्यवक्ताओं ने, यीशु ने जो जो बातें बोली, जो जो बयान किए हैं, He's been labeled as evil. संसार के लोग वही बातों को अब क्या बोल रहे हैं, ये बात जो यीशु ने बोली आप बोल रहे हैं वो बुरा है. They're calling the book evil, the Bible. और बाइबल को भी वो बुरा बोल रहे हैं. And in the universities in America, which is very liberal. और अब जो अमेरिका के बड़े बड़े इस यूनिवर्सिटीज में विद्यापीठ है उसमें ऐसी बातें चल रही है जो लिबरल कहलाए They जाते take the हैं. Bible and they are tearing it in front of the Christians. वो बोलते हैं कि हम आजाद लोग हैं, हमें बाइबल की जरूरत नहीं है. वो बाइबल उठा के उसको फाड़कर मसीह लोगों के सामने फेंक रहे हैं. So we and our book are being labeled as evil. इसलिए आपको और हमको और हमारे इस पवित्र किताब को, बाइबल को बुरा माना जा रहा है. And many Christians are falling into the trap because they want to please the world. बहुत मसीह लोग इसी फंदे में आज फंस रहे हैं, विश्वासी लोग. क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को ये खुश करना चाहते हैं. You know, these young men and women. ये जवान बच्चे, लड़के और लड़कियां, So to please the world, they go along with these people. दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए वो उनके जैसे ही बोलने लगते That हैं. is why they cannot accept the teachings of the Bible. When you know, these old time pastors, when they preach, they cannot take those teachings. इसलिए ये वो जवान है जो पुराने दिनों में पादरी और पासवान बोलते आ रहे थे, उस प्रकार की सारी शिक्षाओं को वो प्राप्त नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर Well, सकते. I'm glad as a pastor. लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की, एक पासवान के नाते. Even when I was young जब मैं जवान भी था, in the world, संसार में था, I used to always like things that are old, not people, but for example, old music, I used to listen to old music. I used to watch old movies. जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं जब जवान था, शायद ये आप बोलोगे प्रभु ने ही किया होगा मेरे जीवन में. तब से जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मुझे पुरानी चीज़ें, मतलब पुराने गीत जो धीमे धीमे गाते थे और पुराने जो मूवीज जो गंदे वंदे नहीं थे, वो मुझे अच्छे लगते People used थे. to tell me, why do you like the old thing? I said, because I understand it and it's got like a quality. और मैं बोलता, लोग मुझे पूछते, अरे तुझे वो पुरानी चीज़ें क्यों इतनी अच्छी लगती है? मैं बोलता था उसमें कुछ अर्थ है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, और वो गंदा वंदा नहीं है, थोड़ा साफ होता है इसलिए अच्छा लगता So है. even when I became a Christian, इसलिए मसीह बनने के बाद भी my ways were
of the old timers because I did not like what was new and what was in fashion. सुनिए, मुझे पुराने दिनों में जो लोग करते थे, मसीह लोग भी करते थे, मुझे वही चीजें आज भी अच्छी लगती है. अब जो नया नया अब देख रहे जवानों में और संसार में मसीह लोगों के अंदर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. I do not accept the fact that God has changed with the years. No, He doesn't change. He stays and He remains the same. He's the Amen. same yesterday, today, and forevermore. Amen. मैं ये बात तो ग्रहण नहीं करूंगा कि हमारा परमेश्वर बदलता है, रोज बदलता रहता है. नहीं 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 भैया, वो कल आज और युगान युग वैसा ही परमेश्वर रहेगा. Now, you may have knowledge. इसीलिए ज्ञान आपको होगा. Like, for example, in my church in Mauritius, there was a man who had knowledge of fixing things, lighting, plumbing. He knew everything. अब एक उदाहरण दे रहा हूँ. हमारे कलीसिया में मॉरिशस में एक मनुष्य था, उसको सारी बातें, ये जो इलेक्ट्रिकल और सब बातें उसको पता थी. He had the knowledge, he had the wisdom of how to, to build everything up and make everything happen. घर में जो नल बिठाना, लाइट बिठाना, ये सारी बातें, फैन बिठाना, ये सब आता था. उसको ज्ञान बहुत था. But as a Christian, he also had something else. He had craftiness. लेकिन मसीह था वो, पर उसके अंदर एक और बुरी चीज थी, वो बड़ा चतुर था. So he would do things where he would he would use less material. He would charge you more and then do less. और फिर वो ऐसा करता था, ये भाई था प्रभु में, वो क्या करता था, वो गलत गलत मटेरियल लाता था या कम उसको इस्तेमाल करता था कुछ बिगाड़ करने के लिए, और कम वाली ऐसे चीज लाकर वो ऐसे ही उसको यूज करता था, इस्तेमाल करता था. And so as a Christian, इसलिए मसीह होने के नाते when you have knowledge, ज्ञान तो आपके पास होता है. what is wisdom? Wisdom means taking that knowledge and using it, and there's actions that come from that knowledge which you have. सुनिए, ज्ञान तो होता है, लेकिन बुद्धि क्या होती है? उसी ज्ञान को हम उठा लेते हैं और हम ठीक तरीके से, ठीक ढंग से हम उसका सदुपयोग करते हैं या उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करते Those हैं. actions which is wisdom should be used in the right way. बुद्धि का उपयोग कृति के द्वारा होता है और वो सही तरीके से होना चाहिए. You have knowledge of business? हाँ, आपको व्यवहार या जो व्यापार होता है उसका ज्ञान Do है. not do business like the world does business. तो दुनिया के लोगों के समान आप व्यापार मत कीजिए. You're a teacher? आप शिक्षक हो. Do not use your knowledge like the world uses it, but be a teacher who wants to give all that he or she has. That's right. to build somebody's life up. दुनिया के शिक्षकों के जैसे मत बनना, लेकिन आपको जो कुछ मिला है, जो कुछ जानकारी मिली है, आप सब कुछ दे देना, क्योंकि आप मसीह हो और बुद्धि का आप ठीक ढंग से इस्तेमाल It's not करना. about the money, it's about investing in people's Amen. lives. पैसा कमाने के लिए आप सीखने में मत जाइए, शिक्षा देने में मत जाइए, लेकिन किसी के जीवन में आप कुछ बो रहे हो, कुछ दे रहे हो, इसके नजरिए से I आप can give you many examples शिक्षण दीजिए. अब मैं उदाहरण देता through हूँ experience that I've had. और जो अनुभव मुझे मिला है उसके द्वारा. You're a Christian builder, contractor. You do not go and cheat by using inferior material and cheap material. आप अगर क्रिश्चियन कॉन्ट्रैक्टर, आप बिल्डर हो, आप इमारत जो है घर बांध रहे हो, बना रहे हो, तो आप जाकर जो कम कीमत वाली जो बालू है या जो ईंटें हैं उसको खरीद कर किसी का घर मत बनाना. Amen. गलत So है. you need to have Correct. godly wisdom and knowledge. Yes, इसमें परमेश्वर की जो ज्ञान होती है और बुद्धि इस्तेमाल करना जरूरी होता है. Especially now in the days that we are living in. खास तौर से इन दिनों में जबकि हम जी रहे हैं. For there's evil all around us. क्यों? हमारे सब तरफ, हमारे गोल बुराई ही है. You are being cheated wherever you go. जिधर जाओ लोग फंसा रहे हैं. Now, not because you have been cheated that you have to cheat others. ऐसा ना करो कि आपको किसी ने फंसाया इसलिए मैं भी फंसाऊंगा. If you have been lied to by the others, you don't have to lie to others. ऐसा मत करो, उसने मुझे झूठ बोला मैं भी झूठ बोलूंगा. Because this book is mainly for the youth, for the younger Yes. audience, that you may instruct as young parents, that Amen. you may instruct your children to Hallelujah. become good disciples of नीत- Jesus Christ. नीति वचन की ये जो पुस्तक है खास तौर से युवकों के लिए, जवानों के लिए है. क्यों? ताकि वो इसको पढ़ के, जो जवान माँ बाप है, अपने बच्चों को ठीक ढंग के सिद्धांत प्रभु के वचन के अनुसार सिखाए कि आगे बढ़कर वो अच्छे लोग, अच्छी व्यक्ति बन जाए. I said this on Wednesday. In the book of Daniel says in the last days दानियल that की किताब में knowledge will लिखा है. increase. दानियल की किताब में लिखा, मैंने पहले बताया था,
अंतिम दिनों में ज्ञान की बढ़ाई और बढ़ोतरी होगी। It has increased. सब तरफ ज्ञान बढ़ गया है। Now, how you put that knowledge into actions is up to you. That's right. विद्या सब तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसी विद्या को लेकर, ज्ञान को लेकर कैसे इस्तेमाल करते हो आपके ऊपर निर्भर है। That is why you need to be instructed. इसी कारण ये बुद्धि कैसे इस्तेमाल करनी है, किधर करनी है, इसका निर्देशन देना हमारा काम है। Amen? Hallelujah. That is called moral discipline. इसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा। Okay, I know this morning it has been a teaching kind of sermon, and अब मैं जानता हूँ आज का जो हमारा प्रचार था वो आपको बड़े एक पाठ के समान हमने स्कूल में जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाया है। but I just wanted to do the introduction on a Sunday so Yes. that you can tune in on Wednesdays and we can continue the book of Proverbs together. लेकिन मैंने क्यों ये दिन, आज का रविवार का दिन, ये परिचय देने के लिए चुना ताकि जो लोग बुधवार पे नहीं आते आज का सुनकर बुधवार के दिन में भी 1 घंटे के लिए शामिल होंगे। Amen? हालेलुया। So do join us on Wednesdays. इसलिए जरूर भाइयों बहनों बुधवार के दिन आइएगा 7 बजे शाम को, और भी हमारे साथ पढ़कर आप मजबूत हो जाइएगा। And Fridays. और शुक्रवार के दिन Amen. भी। Let us pray. आइए हम सब दुआ करेंगे। Heavenly Father, we thank you this morning. आसमानी बाप धन्यवाद देते हैं आज सुबह के लिए। Yes, you are known as Abba Father. तू अब्बा पिता जैसे जानता है All हमको। knowing, you know it all. ओ तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। You know our tomorrow. हमारे कल के बारे में जानता है। You know things that we need before we can even ask for it. मांगने से पहले ही तू सारी हमारी बातों को जान लेता है। You knew us in our mother's womb before we Yes. could even come into the world. हमारी माँ की कोख में से भी तो हमें जानता था, हम इस दुनिया में आने से पहले Even भी। before the foundations of the earth were formed, you knew us. हालेलुया। ओ इस पृथ्वी की बुनियाद डालने से पहले ही तूने हमें जान लिया। Oh, you are our heavenly Father, all knowing and all. You have great knowledge. तू हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो सारी बातों को पहचानता और जानता है। And you love your children. और तेरे बच्चों पर तू प्यार करता You है। want to teach your हालेलुया। children. तू तेरे बच्चों को सिखाता That is है। why I ask you, Lord, इसी कारण मैं तुझे मांगता हूँ परमेश्वर, as we study the book of Proverbs together, कि नीति वचन के इस पुस्तक को जैसे हम पढ़ते जाएंगे that you will teach us. कि तू हमें सिखा। Oh, Holy Spirit, that you will allow us to become teachable. पवित्र आत्मा तू हमें शिक्षा स्वीकारने का एक आत्मा दे, For you are the great teacher. क्योंकि तू सबसे उत्तम शिक्षक Teach है। us. हमें सिखा Instruct us. और तू हमें निर्देशन Guide दे, us and discipline us हमें मार्गदर्शन कर और हमें तू अनुशासन in दे। making us good disciples. एक अच्छे खासा एक चेला और शागिर्द बनने के That when लिए। we go out among the wolves, that we will be shrewd right. as serpents. यस, जबकि हम बाहर भेड़ियों के बीच में जब हम जाएंगे तो हम उस सांपों के समान चतुर रहेंगे, But we will stay away from evil. लेकिन हम बुराई से दूर For भागेंगे, we serve a loving God. क्योंकि हम एक प्रेम मोहब्बत करने वाले परमेश्वर की भक्ति So in करते these हैं। days of reading the book of Proverbs, we pray, Lord Jesus, शरलबरे नीति वचन की इस किताब पुस्तक में से जब हम पढ़ेंगे इन दिनों में, हम प्रार्थना करते that we हैं, will increase in knowledge and यस wisdom लॉर्ड, ज्ञान और बुद्धि में हमें बढ़ाते जा, of how to live our lives, कि हमारा जीवन हम कैसे व्यतीत of how करें, to instruct our children, हमारे बच्चों को कैसे निर्देशन दे, and as a pastor, how to instruct the youth of our church. और एक पासबान के नाते मैं हमारे मंडली के युवकों को कैसे निर्देशन So दूं, that we can मार्गदर्शन become दूं, overcomers, ताकि हम सब मिलकर जय जोते बनेंगे। learn to judge between the right and wrong, हालेलुया। फतह पाने वाले और अच्छे बुराई में फर्क समझने वाले, discern between the godly and the ungodly. जो धर्मी और अधर्मी उसमें परखने वाले हम लोग बन Yes, not only सकेंगे। you, Holy Spirit, can teach us this. ओ पवित्र आत्मा, केवल तू हमें बता सकता For है। you are the Spirit that inspired Shalala these Amra men Borore. to write the Yes. book in the Bible. तू ही वो आत्मा है जिसने लोगों को तूने प्रेरित किया इन सारी बातों में को बाइबल में लिखने के You लिए। are the one, Holy Spirit, who gives us words Yes, of wisdom Lord. and knowledge that we can preach. शरलबरे पवित्र आत्मा तू ही है जो हमें बुद्धि और ज्ञान देता है ताकि हम प्रचार कर पाए। You give us boldness when we are confronted by leaders and by Yes. men of influence. यस, जब बड़े बड़े लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, तू हमें
धैर्य देता है ताकि हम उनके साथ ढांढस से बोले। Oh, yes, it's all about you, Jesus. It's all Yes. about your spirit. सारी बातें यीशु तेरे बारे में ही है, तेरी आत्मा के बारे में ही है। We are only a creature and you are our creator. ओ हम केवल एक निर्मिति है, तू हमारा निर्माण करता है। That's why we give you reverence. इसी कारण हम तुझे आदर युक्त ऐसे भय के Hallelujah. साथ All reverence goes to you. सारा आदर तुझे ही देते हैं, For you are great and awesome. क्योंकि तू महान अद्भुत है। We thank you. थैंक यू जीसस, Thank you धन्यवाद for यीशु। blessing us with wisdom and knowledge. ओ बुद्धि और ज्ञान से हमें तू आशीषित किया, इसलिए And if धन्यवाद। we lack wisdom, we will ask अगर हम में बुद्धि की कमी है तो हम मांगेंगे, in the name of Jesus. यीशु के नाम से आज हम In मांगेंगे। the name of Jesus. बुद्धि देना परमेश्वर, बुद्धि देना। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन।